The one-man army who's taken on the might of the establishment and come out triumphant. I'm joined today once again by the man of the match, and if this was a series, Dr. Swami, by now you'd be man of the series and man of possibly the entire World Cup. Thank you very much for joining me on Hot Pursuit. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की मुलाकात और मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं कि शख्सियत से जो अपने आप में वन मैन आर्मी है, उन्हें इस तरह से कहा जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी। आज उन्हीं से मुलाकात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में आपका। हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट लीगल एक्सपर्ट्स हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं सुब्रमण्यम स्वामी। देश के जाने माने एक्टिविस्ट हैं और सांसद हैं। इस देश के पूर्व कानून मंत्री हैं और इन्होंने 2G घोटाले सहित कई बड़े घोटालों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई है और 2G घोटाले को लेकर कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। सरकार किसी की भी हो, सुब्रमण्यम स्वामी से जरूर डरती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। Special Faith Journal Forum, where we're taping on location with Dr. Subramanian Swami, who's an expert in economy. Also, he's a member of the Janata Party. He's the president of the Janata Party in India, former cabinet member in India, and also the author of the book Hindus Under Siege. We're going to have a discussion about Hinduism in India, relations with China, and other wide-ranging issues related to the great subcontinent. Welcome, Dr. Swami. Thank you very much. Hello and welcome to the show. My guest today is one of India's most colorful politicians. He's an academic, an intellectual, a zealous crusader, and some would say a maverick opportunist. I'm talking about Dr. Subramaniam Swami, the former parliamentarian, former union minister, and currently the national president of the Janata Party. Dr. Subramaniam, it's good to have you on the show. Hello and welcome to Cover Story. This week we have our favorite guest back again on the studio. I'm talking about BJP leader Subramaniam Swami, and he's come once again with yet another scalp under his belt. Joining me today is a man who carries many titles: crusading litigator, economic scholar, and mercurial politician. I have with me Dr. Subramaniam Swami, senior leader of the BJP. Dr. Swami, always a pleasure talking to you and having you on Bloomberg TV India. Dear viewers, we've had a lot of personalities on this show, but my guest today doesn't need an introduction at all because he's Dr. Subramaniam Swami. A very warm welcome. Thank you. Dr. Swami, you are intelligent, you're a charmer, you've done a lot in life, not only politically but also otherwise. You are the best person to be a friend of anybody. और आज हमारे खास मेहमान हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जब जब घोटालों की बात होती है तो करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के नाम सामने आते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं जिनका नाम शुमार होता है करप्शन के खिलाफ लड़ने वालों में। स्वागत कीजिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। In the Supreme Court, I have already argued. सुब्रमण्यम स्वामी भारत के उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से एक हैं जिन्होंने ऊंची शिक्षा पाई। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से उन्होंने PhD की और वहां एसोसिएट प्रोफेसर भी बने। भारत में उन्होंने IIT में पढ़ाने का काम भी किया। उन्हें 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं अमर्त्य सेन और साइमन कर्ट से सीखने का मौका मिला। उन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि 2G के बारे में उन्होंने कई सवाल उठाए जिससे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। जिन लोगों ने लंबे वक्त तक करप्शन से लड़ाई की है उनमें इनका नाम सबसे आगे है। सुब्रमण्यम स्वामी रजत शर्मा के साथ आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिससे बड़े बड़े नेता डरते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसे उनके एडमायरर्स करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा क्रूसेडर मानते हैं। मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर हजारों मैसेजेस मिले, बार बार मैसेज मिले इस शख्सियत को आपकी अदालत में बुलाने के लिए। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी।
एक नजर डालेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बैकग्राउंड पर। डॉक्टर स्वामी ने 2G स्कैम को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। इनके केस की वजह से टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा जेल में हैं और 122 लाइसेंस कैंसिल हुए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से पी चिदंबरम मुश्किल में हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर स्वामी हार्वर्ड और IIT दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। राजनीति में डॉक्टर स्वामी की शुरुआत जेपी मूवमेंट के दौरान हुई। 1977 में डॉक्टर स्वामी मुंबई से लोकसभा का चुनाव जीते। चंद्रशेखर की सरकार में डॉक्टर स्वामी कॉमर्स और लॉ मिनिस्टर रहे। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने डॉक्टर स्वामी को कैबिनेट रैंक दिया। डॉक्टर स्वामी ने कई सरकारों को गिराने में भूमिका अदा की। नए जमाने के लोग डॉक्टर स्वामी को कांग्रेस के खिलाफ क्रूसेडर के तौर पर जानते हैं। सोशल मीडिया पर इनके बयान और अदालतों में इनके केस डॉक्टर स्वामी को हर रोज हेडलाइंस में बनाए रखते हैं। डॉक्टर स्वामी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, पावरफुल लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आपके नाम से डरते हैं। लोग कहते हैं कि स्वामी के ना आगे आना चाहिए ना स्वामी के पीछे। तो क्यों इतना डरा के रखते हैं आप लोगों को? मैं उनको डरा सकता हूं क्योंकि उनका पोल खोल सकता हूं, वो मुझे नहीं डरा सकते क्योंकि मेरा कोई पोल खोलने के लिए कुछ है नहीं। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो देशभक्त तो हैं ही, नेता भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो भ्रष्टाचार को लेकर देश में जो पूरा आंदोलन हुआ है उनके जनक हैं ब्रह्मा, जिन्होंने 2G के मामले को एक अपना पर्सनल फाइट बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले को पहुंचाया। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपका चौथा दुनिया में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मैं हूं रानी रूहल। मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे शख्स से जो कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन हैं और एक लॉयर भी हैं। इन्होंने जो कहा वो हमेशा करके दिखाया है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम इंटरव्यू की शुरुआत करें उससे पहले आप ये बताइए, सोशल मीडिया हो, कोर्ट हो या कोर्ट के बाहर, एक केस के बाद एक केस, इतनी फाइटिंग स्पिरिट आती कहां से है? मतलब एज फैन मैं जानना चाहूंगी कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स एक ही है, भगवद गीता कि ये अपने मन से, पूरे मन से ये मानना कि इस जीवन में आपको सिर्फ अधिकार है कार्य करने के लिए। उसका फल आएगा तो, बट किस रूप में आएगा, कब आएगा, किस किस्ते में आएगा, ये भगवान तय करता है। तो जब इस प्रकार की मंशा होती है, बन जाती है, तो व्यक्ति कभी में अहंकार नहीं होती है कि मेरे कार्य से फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, मैं सक्सीड करूंगा नहीं करूंगा। इस चिंता में उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। तो यदि ये मन सब में आ जाए कि हमें अधिकार सिर्फ कार्य करने के लिए, वो भी अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कर्म बनेगा, तो फिर मैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि ऊर्जा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पिछले लगभग 2 साल से एक षड्यंत्र के तहत संत श्री आशाराम जी बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं। आजकल बापू जी का केस भाजपा नेता व सनातन धर्म प्रेमी सुब्रमण्यम स्वामी जी देख रहे हैं। स्वामी जी ने जब बापू जी की केस फाइल पढ़ी तो हैरान हो गए कि किसी केस में इतने सारे झूठ कोई कैसे बोल सकता है। केस की कुछ बारीकियां साधकों के सामने रखी और उनसे प्रार्थना की कि अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना और अपनी भक्ति पर डटे रहें। मित्रों, जहां भी मैं जाता हूं, हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर,
बड़ी संख्या में आसाराम बापू के भक्तों को सिर के साथ परिचय, इतना व्यापक उनके भक्तों के संख्या है कि उसी घबराहट में उनके ऊपर एक झूठा केस डालकर सत्ता का दुरुपयोग करके उनको अभी भी जेल में रखा गया है। मुझे व्यक्तिगत परिचय बहुत सालों से आसाराम बापू से रहा है और मैं जानता हूं कि उन्होंने जो विदेश से आए हुए क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, उनका उन्होंने डट के मुकाबला किया, धर्म परिवर्तन लालच देखकर करने की प्रयास को विफल किया। मैंने उनको एक बार हवाई जहाज में जब आ रहे थे साथ, तब मैंने उनको बताया कि सत्ता में लोग जो हैं वो चिड़े हुए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बापूजी को तो कोई किसी चीज की डर नहीं थी, उनको भगवान में विश्वास था और आखिर में वही हुआ जो मैं संदेह करता था। और 3-4 बार बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मुझे संदेश आया कि मैं जोधपुर जेल में बापूजी को मिलने के लिए आऊं, और तो इसीलिए मैं गया और ये पिछले मई मास में हुआ और जेल में मैंने उनसे भेंट की। फिर मैंने केस को पढ़ा और देखा कि जो लड़की ने आरोप लगाई वो घटना होने के 5 दिन के बाद जोधपुर के पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं की, वो दिल्ली के सरोजिनी नगर में फाइल की थी। ये तो कभी होता नहीं है। दिल्ली पुलिस को भी तुरंत उनको यही कहना चाहिए कि घटना तो आप कहते हैं जोधपुर में हुआ, तो जोधपुर में जाकर फाइल करना चाहिए। और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, परंतु अपने बचाव के लिए उन्होंने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कर दिया और वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में साफ लिखा कि कोई रेप नहीं हुआ, बलात्कार बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद उस सारे कागजात को उन्होंने जोधपुर को भेजा, जहां गहलोत चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने उनको जबरदस्ती बंद कराई। और फिर बाद में नए नए बातें को जोड़ी। जोधपुर पुलिस ने एक अलग से एफआईआर भरी, उसमें उन्होंने नई बात जोड़ी कि ये 18 साल से कम है। हाँ, बलात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हाथ लगाया, लड़की कहती है हाथ लगाया और किसी ने देखा नहीं। माँ दरवाजे के बाहर बैठी है और लड़की चिल्लाती तो निश्चित तौर पर वो अंदर आती। और बाद में पता लगा कि टेलीफोन रिकॉर्ड्स जो उनकी सेलफोन है वो लड़की की, उससे पता लगता है कि जिस समय पर वो कहते हैं कि बापूजी ने हाथ लगाया, उस समय वो वहां थी भी नहीं। वो अपने मित्र एक लड़का से लंबी टेलीफोन में बात कर रही थी और सेल फोन से पता लगा कि वो दूसरी जगह में थी। और उसी समय बापूजी भी एक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, वो भी वहां नहीं थे। तो ये केस तो तुरंत रद्द होना चाहिए। इसी बीच में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह भी बताया कि बापूजी वर्षों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए थे। शायद बापूजी का यही असली कसूर था, क्योंकि बापूजी धर्मांतरण के आड़े आ रहे थे। बापूजी ने हिंदू समाज की प्रतिष्ठा के लिए बहुत संघर्ष किया
यहूदी जिनको जूस कहते हैं, उनका शोषण दुनिया भर में हुआ, लेकिन एकमात्र देश हिंदुस्तान में उनका नहीं हुआ। इसीलिए जब इजराइल की स्थापना हुई तो उनके पार्लियामेंट में पहला प्रस्ताव था, धन्य हो भारत, एकमात्र देश जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ और नस्लवाद नहीं हुआ। हिटलर ने तो 60 लाख जूस को गैस चैम्बर में मार दी। ईरान की कब्जा इस्लाम ने की। उस समय पारसी जो अग्नि पुजारी हैं वो राज कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो दुनिया भर गए भाग के, परंतु जिंदा आज एक ही जगह में है, वो हिंदुस्तान में है। और जब सब जगह में छाए हुए हैं, सिर्फ 60,000 हैं, परंतु उनको कभी हिंदुस्तान में तकलीफ नहीं आई। और जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पारसियों को कहा कि आप इतने कम संख्या में हैं, इतनी बड़ी बहुमत हिंदुओं का है, तो हम जैसे एंग्लो इंडियन के लिए एक आरक्षण दिए, आपको भी देकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। ये हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति में क्रिश्चियंस हमारे देश में धर्म परिवर्तन करके इस देश की चरित्र को बदलने चाहते हैं। संस्कृति और धर्म, इसकी रक्षा करने के लिए बापूजी ने मेहनत की। अब डटे रहिए और किसी को मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारे संस्कृति में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। रामचंद्र जी को कोई 14 साल बाहर जाना पड़ा, क्यों? नहीं तो रावण नहीं मरते। तो इसीलिए किसी कारण से वो जेल गए, और जब बाहर आएंगे जब आपको पता लगेगा। और इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है, मैं तो इनको बाहर निकालने तक छोड़ूंगा नहीं, ये मैं वचन देता हूं। धन्यवाद। दिनांक 20 जून को जोधपुर सत्र न्यायालय ने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की जमानत के लिए लगाई अर्जी की सुनवाई में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 6 मुख्य गवाहों की गवाही पूर्ण होने के बाद जमानत के लिए अर्जी डाल सकते हैं। तद अनुसार छठी गवाह सुधा पटेल की गवाही 8 जुलाई 2015 को हुई और पुलिस द्वारा उसके नाम से बनाए गए फर्जी बयान की पोल खुल गई। परम पूज्य बापूजी के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र की परतें अब खुलती जा रही हैं। किस तरह एक सुनियोजित तरीके से बापूजी के खिलाफ झूठे सबूत व गवाह खड़े किए गए, इसकी पोल 8 जुलाई 2015 को जोधपुर सत्र न्यायालय में दिए गए सुधा पटेल के बयान से खुल गई है। पुलिस द्वारा दर्ज आरोप पत्र में सुधा पटेल के नाम पर लिखे गए बयान में जिन वाहियात बातों का जिक्र किया गया था, सुधा ने उन बातों को झूठा व कपोल कल्पित बताया। सुधा ने पुलिस के सबसे बड़े झूठ का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस वालों ने दिनांक 16 सितंबर 2013 को मेरे बयान लिए थे। यह एकदम गलत व झूठी बात है। आज से पहले मैं कभी भी जोधपुर नहीं आई थी। जोधपुर पुलिस अहमदाबाद आई थी। मुझसे जोधपुर पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने मुझसे हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि पुलिस वालों ने मेरे हस्ताक्षर किस बात के लिए करवाए थे। पुलिस किस तरह व्यक्ति से पूछताछ किए बगैर तथा बयान लिए बगैर बनावटी बोगस बयान तैयार करके अपना दबाव बनाकर उन पर हस्ताक्षर लेके झूठ बयानों का पुलंदा खड़ा करती है, यह सुधा के बयान से अब सबके सामने आ गया है। पुलिस द्वारा आरोप पत्र में वर्णित मनगढ़ंत कहानी की पोल खोलते हुए सुधा पटेल ने न्यायालय को बताया, मैं मेरी मर्जी से महिला आश्रम मोटेरा अहमदाबाद में 10 साल तक रही। मेरे साथ वहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मैंने बापूजी के द्वारा किसी भी अन्य अनुयायी या महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि मैंने आश्रम में कई घटनाएं जो आपत्तिजनक हुई हों, उनको पुलिस वालों को बयान देते वक्त बताया हो। आश्रम में कोई भी आपत्तिजनक घटनाएं नहीं हुई थी, न ही मैंने पुलिस वालों को ऐसी कोई घटना बतलाई है।
सुधा ने न्यायालय में दिए अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि यह कहना गलत है कि मुझे और मेरे भाई को आश्रम से किसी भी तरह की धमकी मिली हो। मुझे आश्रम द्वारा कोई लालच कभी भी नहीं दिया गया है। मैं बिना किसी भय या डर के आज यहाँ न्यायालय में अपना बयान दर्ज करवा रही हूँ। श्री सुब्रमण्यम स्वामी बापूजी की जमानत के लिए नई अर्जी तैयार कर ही रहे थे कि 10 जुलाई को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से एक गवाह कृपाल सिंह, जो कि 1 साल पहले ही गवाही दे चुके थे, उन पर जानलेवा हमले का समाचार आ गया। यह केवल संयोग भर नहीं है कि जब जब भी बापूजी की जमानत की कोशिश की जाती है तभी इस प्रकार के समाचार आ जाते हैं और बापूजी के खिलाफ नकारात्मक माहौल तैयार करने की एक नई साजिश शुरू हो जाती है। यह सब बापूजी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे अति शक्तिशाली लोगों का ही एक नया कारनामा है, जो अपने इस्तेमाल किए जा चुके मोहरों पर हमले करवाकर इससे पहले भी बापूजी की रिहाई में अड़ंगे डालते रहे हैं। हाँ देखो, वो तो बेचारा 11 महीने पहले देके गया, हमारी एनक्वायरी में भी नहीं दिया, और फिर भी ये होते हैं तो जो करवाते हैं, भले सीबीआई जांच हो तो और अच्छा है, सत्य का सत्य हो जाएगा। जब हमारा कुछ मूवमेंट होता है बाहर निकलने का तब ये करवाते हैं, और हम क्यों करवाएंगे? गवाही तो हो गई 11 महीने पहले और उसने हमारे खिलाफ भी नहीं दिया, और गरीब लड़का था बेचारा। कौन है जो आपके खिलाफ ऐसी साजिश? जो मेरे को यहाँ भेजे हैं वही करवाते हैं, उनके लंबे हाथ है, लंबी साजिश है। कोई नाम कोई ऐसा इंसान मुझे मालूम है उनका? अपराध अनुसंधान के विषय में एक सर्वसामान्य सिद्धांत यह भी है कि किसी भी अपराध की जांच शुरू करने से पूर्व पुलिस या जांच एजेंसी को यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी आपराधिक घटना से लाभ किसको मिला है। इस सिद्धांत के अनुसार भी बापूजी के विरुद्ध बनाए गए बोगस केसों के गवाहों पर हो रहे हमलों का लाभ सीधा षड्यंत्रकारियों को ही मिलता रहा है। ऐसे में जमानत चाहने वाला कोई ऐसी नादानी क्यों करेगा? दिनांक 18 सितंबर 2014 को संत श्री आशाराम जी बापू ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से जोधपुर की संबंधित अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर माननीय न्यायाधीश महोदय से अपने केस से संबंधित सभी गवाहों को कड़ी सुरक्षा देने की मांग की थी तथा न्यायालय ने पुलिस व प्रशासन को तुरंत इस विषय में कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे। इस केस से संबंधित कई गवाहों को पुलिस सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है, किंतु पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं जारी रहना यहाँ दो बातों को जरूर रेखांकित कर रहा है। एक तो बापूजी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोग पुलिस प्रशासन से भी अधिक शक्तिशाली है। दूसरा, षड्यंत्रकारी किसी भी कीमत पर बापूजी को कारागार से बाहर नहीं आने देना चाहते। भोलानंद को अक्टूबर 2013 में लोगों ने न्यूज चैनलों पर देखा था, जो बापूजी के खिलाफ जहर उगल रहा था। तो ये सम्मोहन शक्ति के द्वारा आसाराम बापू अभी तक अपना फंडा चला रहा था। षड्यंत्रकारियों का मोहरा बने भोलानंद गुप्ता ने गवाहों पर हो रहे हमलों के पीछे का रहस्य उजागर करते हुए हजारों लोगों के सामने आकर कहा था, हम जब आपस में मिलते बैठते थे ये लोग एक बहुत बात बोलते थे अच्छी। इनका ये कहना होता था, बोल गुप्ता जी देखो, आप फंसते हो या हम फंसते हैं, हम में से कोई भी अगर पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे या चक्कू से वार कर देंगे। ये इनके लफ्ज थे, कई बार बोले उन्होंने। लेकिन आप यही करना, ऐसे खाली मत पकड़े जाना किसी से, मतलब अपने ऊपर या तो कुछ छुरा वरा मार लेना या कुछ ऐसा अपने ऊपर कर देना, या हम कुछ करवा देंगे आप पे, तो आप फिर वो क्या करेंगे, वो केस बनाकर बापू पे डाल देंगे हम लोग। ये ऐसा इनकी इसकी पूरी स्कीम थी। कृपाल सिंह पर हुए हमले पर आश्रम मीडिया प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा, देखिए, गवाहों पर अटैक होना हमारा केस खराब होना, जैसे जैसे गवाहों को पर अटैक होता जाएगा हमारा केस उतना ही खराब होता जाएगा। ये बात हम अच्छे से समझते हैं। इसीलिए पिछले साल 20 सितंबर को 2014 में हम लोग सेशन कोर्ट में गए थे। हम कोर्ट के थ्रू ये बात कहना चाह रहे थे कि जितने भी विटनेसेस हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी विटनेसेस जुड़े हैं, उनको हाई लेवल सिक्योरिटी दी जाए। उनके वर्क फंक्शन पे, उनके रेजिडेंस एरिया पे
कैमरास तक लगा दिए जाए ताकि कोई भी उनके आके मिलता है या बात करता है उसका रिकॉर्ड रहे, और उनको कोई भी हानि होती है तो पूछताछ में ये बात सामने आ जाए कि किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया। ये बात हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो विटनेस गवाही दे चुका है, गवाही दे के अरसा बीत गया है, अब उसकी गवाही दोबारा होनी नहीं है, अब उस गवाह को हम क्यों छेड़ेंगे, ये सोचने की बात है। अब फ्राइडे रात में उस गवाह को मारा जा रहा है और गोली मारी जा रही है, और शनिवार की रात में वो व्यक्ति दिवंगत हो जाता है। संडे आता है, फिर मंडे में हमें कोर्ट में जाना है, अपनी बेल की एप्लीकेशन डालनी है, बेल अप्लाई करना है, फ्रेश बेल, जो कि हमारा रास्ता साफ था, तो हमारा ही रास्ता खराब किया जा रहा है। ये षड्यंत्रकारी बहुत बुरी तरह से हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे एक एक स्टेप पे इन्होंने नजर पड़ा रखी है, और जैसे ही देखते हैं कि अभी सरकारी छुट्टी है तो उन छुट्टियों का फायदा उठाते हैं और ऐसे हादसों को अंजाम देते हैं। तो हम खुद चाहते हैं कि जितने भी हादसे हुए हैं इन सब को रोका जाए, चाहे कोई कमेटी गठित हो, चाहे कुछ भी हो, मगर ये हादसे रुकने चाहिए ताकि हमारा केस जितना खराब हुआ है उससे और खराब ना हो।
Oh
Subscribe us for more updates on YouTube channel Truth Uploader.